Hello, students. Once again, you are welcome here in the first chapter of Geography, India, size and location. This is the third video for this chapter. Now, in this chapter, you are only studying about the size and location of India, about our neighboring country, about our neighboring oceans and rivers, continents, plateaus, mountains. These are all the natural things and the maps of world which is surrounded India. Here, first of all, you have to see here in this world map about India and India's location. You see here, this is India here in this world map. Let's see, student, on the upper side of India, here is Tibet. Just under it, you can see here Nepal. Here you see Pakistan. Just above Pakistan, you see Afghanistan, and Sri Lanka is also hanging just under the map of our country. Here we have also Indian Ocean, and our Indian Ocean is divided into two parts. The first is Arabian Sea and the second is Bay of Bengal. You see here Arabian Sea, and here the second is Bay of Bengal. These are the parts of Indian Ocean. So, students, you can understand here that this is the map of our country in the world map. Now let's see India, and here the neighboring country of India. Okay, now let's see. India's contact with the world have continued through the ages, but her relationships through the land routes are much older than her maritime contact. So when we talk about India's contacts with the world country, our relationship through the land routes are very older, but our maritime contacts is also very older, but land routes is more older. Land routes are much older than our water routes, means you can say it maritime contact. जल मार्ग की अपेक्षा स्थल मार्ग को वरीयता ज़्यादा पुरानी अतीत के रूप में वरीयता प्राप्त हुआ है. The various passes across the mountains in the north have provided passage to the ancient travelers, while the ocean restricted such interactions for a long time. When we talk about the passengers, our ancient travelers who came from Europe to India, they traveled by land routes, because by water routes they felt a lot of restrictions, so land routes were easy for them. These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient time, and the ideas of the Upanishads and the Ramayans, the stories of Panchatantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world. Here, the old land routes of India contributed the exchange of ideas and commodities. जो भी वहाँ से लोग आते थे तो यहाँ पे अपनी आइडियाज़ को, अपनी कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करने का चांसेस इंडियंस को भी मिलता था.
और हमारी जो उपनिषद और रामायण में जो भी आइडियाज़ हैं, चाहे पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं, या फिर भारत में जो न्यूमरल्स और डेसिमल सिस्टम है, ये सब विश्व के अनेक पार्ट से हमारे यहाँ तक पहुँचे हैं। ये सब लैंड रूट्स के माध्यम से ही भारत तक पहुँचे। द स्पाइसेस, मुस्लिन्स एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्री। और इंडिया में उस समय मसलिन और मसालों की सबसे अधिक भरमार थी। ये यहाँ का सबसे बड़ा एक व्यवसायिक चीज़ था। इसलिए जो मर्चेंट्स आते थे वो इंडिया से डिफरेंट कंट्रीज में लेकर के जाते थे। ऑन द अदर हैंड, द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक sculptor and the architectural styles of Dome and minerals from West Asia can be seen in different part of our country। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ग्रीक स्कल्प्टर यानी ग्रीस का जो मूर्ति कला थी, यूनानी मूर्ति कला, या फिर आर्किटेक्चरल स्टाइल्स जो हमारे गुंबदों के, जो हमारे गुंबद वगैरह की जो मिनरेट्स के जो बनते थे, वेस्ट एशिया से जो हमारे देश के अनेक भागों में देखे जा सकते हैं। तो दिस इज़ द सिंबल, स्ट्रॉन्ग सिंबल ऑफ आवर कंट्री एंड इट हैज़ बीन आल्सो brought by many countries of the world। These sculptures has been brought by many countries of the world in India, and so this is the great recognition of our country in the field of sculpture and other minarets। Now we have to see the another heading, India's neighbors. Who are India's neighbors? Which countries are India's neighbor? Let's see। India occupies an important strategic position in South Asia। India has 28 states and 7 union territories। इंडिया की कंडीशन की हम बात करेंगे तो इन एशियन कॉन्टिनेंट वी आर इन अ साउथ साइड एंड वी हैव टोटल 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। नाउ the number of union territories along the western and eastern coast। India shares its land boundaries with Pakistan, Afghanistan in the north west। मीन्स नॉर्थ वेस्ट में जो हमारी लैंड बाउंड्री है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से टच होती है। चाइना से जो सो तिब्बत उसी के बगल का भाग है। नेपाल और भूटान से नॉर्थ साइड में टच होता है। एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। म्यांमार और बांग्लादेश से ईस्ट में टच होता है। आवर साउदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ द 2 आइलैंड कंट्रीज। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि मैप्स एग्ज़ाम में 100% मैप्स आते हैं और मैप में आपको नेबर्स कंट्रीज़ का नाम पूछा जाता है। तो मैप के किस साइड में कौन सी कंट्री आपको याद रखना है। नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, और नॉर्थ में जाएंगे तो चाइना, नेपाल, भूटान, और ईस्ट में है तो म्यांमार, बांग्लादेश, और साउदर्न नेबर हमारा जो है सी है, हमारा वो इंडियन ओशियन है जो साउदर्न नेबर्स है। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जानना है कि बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट इन इंडिया, द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट। ये चीज़ यूरोपियन कंट्री में भी था, क्योंकि यूरोप उस समय के जो शासक हमारे यहाँ थे सेम चीज़ को यहाँ पे फॉलो किए थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, क्योंकि उनके यहाँ भी प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। वही चीज़ उन लोगों ने यहाँ पर भी लगाया था। प्रोविंसेस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिशियल who were appointed by the viceroy, and princely states were ruled by local hereditary rulers who acknowledged sovereignty in return for local autonomy। तो आपको समझना कि जो भी प्रोविंसेस होते थे वो ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा चलाए जाते थे, जो अपना वायसराय को वहाँ पे नियुक्त करते थे और वही उन प्रोविंसेस को चलाते थे। जबकि जो प्रिंसली स्टेट्स होते थे वो जो हेरिडेटरी जो रूलर्स थे, जो आनुवंशिक रूप से जो राजा व उत्तराधिकारी हुआ करते थे, उनके द्वारा चलाया जाता था। ये हमारे यहाँ के स्टेट की कंडीशन थी। Now you see
the another page of India. You see in a very detail of country. At first you can see on the surface of our map, at first here there is Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir, just under the border of Jammu and Kashmir, you can see here Himachal Pradesh just under it, and just under the Himachal Pradesh you will see Punjab, and then Uttarakhand, and now Haryana and Punjab are neighbors, and here you see Delhi, just neighbor of Delhi, Haryana and Uttar Pradesh, means you can say that Uttar Pradesh, Delhi, Haryana, Punjab, Uttarakhand, ये सब एक दूसरे से एसोसिएट का स्टेट्स हैं। और अब क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ा राजस्थान यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, सबसे बड़े लैंड एरिया के रूप में राजस्थान दिखाई दे रहा है। इसके बाद से आप नीचे आइए, ये देखिए नेपाल यहाँ बगल में आपके ऊपर नेपाल दिख रहा है, चाइना यहाँ पे है, और फिर उत्तर प्रदेश, और फिर यहाँ पे देखिए बड़े क्षेत्रफल के रूप में मध्य प्रदेश यहाँ पे आपके सेंटर में, इंडिया का जो मैप है उसके बिल्कुल सेंटर में मध्य प्रदेश आपका पड़ रहा है, बिल्कुल ही सेंटर में मध्य प्रदेश आपका पड़ रहा है। गुजरात जो है ये बिल्कुल किनारे पर, समुद्र के किनारे पर, हमारे अरेबियन सी के बिल्कुल किनारे पर जो है गुजरात बसा हुआ है। और ये दमन और दीव जो है ये बिल्कुल समुद्र के कॉर्नर पे, ये जो आइलैंड है देखिए आप यहाँ पे ये पड़े हुए हैं, यहाँ पे दमन और दीव, ठीक है। दादर नगर हवेली बीसी से अटैच बिल्कुल महाराष्ट्र के ऊपर है, समुद्र का किनारा अरबियन सी के किनारे जो है महाराष्ट्र यहाँ पे है, यू कैन सी हियर, और बाकी कंट्री फिर नीचे हैं। तो स्टूडेंट्स ये है जो हमारा मैप है, यू हैव टू अंडरस्टैंड आवर मैप वेरी प्रॉपरली, बिकॉज यू विल गेट अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम आवर मैप्स इन द एग्जामिनेशन, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर in the both side you can see Arabian Sea and Bay of Bengal. This is the part of Indian Ocean, and Sri Lanka is also hanging here. One important things I tell you that here just to attach Sri Lanka, you see here as I am scratching this line, ये लाइन को आप देखिए, ये जो लाइन स्क्रेच हुआ ये स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है आपको आकर के यही हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है। यही स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो हमारे ये आगे बढ़ कर के आपको ऊपर जा कर के उत्तर प्रदेश के बीचों बीच से निकला हुआ है, मिर्ज़ापुर से होकर के क्रॉस हुआ है, और यहीं से हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम भी आ गया है। और ये जो लाइन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये जस्ट बगल में जहाँ पे कराकल यहाँ पे लिखा हुआ पद्दुचेरी जो लिखा हुआ है, ये पद्दुचेरी जो लिखा हुआ है यहीं पे, जस्ट यहीं पे गल्फ़ ऑफ मन्नार यहीं पे है, गल्फ़ ऑफ मन्नार यहीं पे आपको मिलेगा, गल्फ़ ऑफ मन्नार जिसे हम पाक स्ट्रेट भी बोलते हैं, गल्फ़ ऑफ मन्नार यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको लोकेशन क्लियर करना है। और यहाँ पे लक्षद्वीप आप देख रहे हैं, बगल में लक्षद्वीप है, मालदीव से दूसरी कंट्री आ गई, लक्षद्वीप यहाँ पे इंडिया का पार्ट्स है, ये बीच में एक आइलैंड है, लेकिन मालदीव से दूसरी कंट्री बीच में आ गई, ओके। तो दिस इज द पार्ट ऑफ मैप, okay. Now you see here students, Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea. देखिए ये थोड़ी सी सी का जो बीच में समुद्री जो बीच में एक स्ट्रीम है, इसी स्ट्रीम के द्वारा इंडिया और श्रीलंका एक दूसरे से बटे हुए हैं, तमिलनाडु बॉर्डर है और ये बीच में थोड़ा सा बटे हुए हैं। तो सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी फाउंड बाय द पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ये बीच में जो पड़ता है पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये बीच में डिवाइड करता है। वाइल मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। देखिए मालदीव जो है ये लक्षद्वीप आइलैंड के नीचे सिचुएटेड हुआ है। India has had strong geographical and historical links with her neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from the rest of Asia. तो जो भी इंडिया का geographical portions है, we can see here in the physical map of Asia and in the atlas, and we can check all the detail of our country and its neighbors. So students, you will see it, you will check it, and you will get a lot of knowledge related to this topic.
Okay, now uh, this is the last video for this chapter, students. Okay, goodbye everyone.